बकरा आयत नंबर 27 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اردو میں ترجمہ: جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ پہلے اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت، یہ وہ، اللہ اکبر، نماز پڑھنا، سب کچھ کرنا، لیکن اللہ کے عہد جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نماز میں عالم شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے بندے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ، سب کچھ کہتے ہیں اللہ سے، ایک پختہ یعنی پکا وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد توڑتے ہیں اس کو. اللہ سب کچھ جانتے ہوئے کلمے پڑھ کے ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب پکا اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، جیسے اس کے پیغمبر راستہ بتا کے گئے، کر کے گئے، ویسے کرنا. ہم سب کچھ کر کے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں، غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، غلط گناہ، بدکاریاں، حرام، جوا، سود، سب کچھ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ سے پکا کیا ہوا عہد ہم توڑ دیتے ہیں، اور یہ نافرمان وہ لوگ ہیں، اور یہ وہ نافرمان لوگ ہیں اس تعلق کو کاٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ایک سچا وعدہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ پکا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ سے، ہر کام اس کے بتائے ہوئے راستے پہ کرتا ہے. چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی کرے تو اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ خود بخود شرمندہ ہوتا ہے. لیکن جب وہ یہ سب کچھ کرے اور نافرمانی کرے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کاٹے توڑے، جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے. نیک لوگوں سے تعلق جوڑو، مدرسوں سے تعلق جوڑو، جماعتوں سے تعلق جوڑو، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو، سکے پیغمبروں سے تعلق جوڑو، نیکی کی طرف آؤ، برائی سے دور بڑھو. زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، زمین میں فساد بھی برپا کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کسی کے واسطے ہیں، کسی میاں بیوی کی لڑائی کروا دینا، کوئی باتیں کر کے. کچھ لوگ تو بس تک جادو ٹونے کر کے کرتے ہیں، کچھ تو ایسے ایسے فتنے پیدا کر دیتے ہیں ماں بیٹے کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، اس طرح کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بات کرنے کے قابل نہیں رہتے اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، پھر ان کو فائدہ بھی کوئی نہیں ملے گا. اگر کوئی کسی کا گھر خراب کرتا ہے، کوئی کسی کی زندگی خراب کرتا ہے، کوئی کسی کو غلط راستے پہ لگا دیتا ہے، تو وہ اس کو تو جو کرتا ہے نقصان، لیکن اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اپنی بھی آخرت خراب کر لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ بعض لوگوں کو اسی دنیا میں دکھاتا ہے، اور کچھ تو دیکھیں کسی پہ مشکل ہے جو تو کہتے ہیں جی اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے. کسی کو ازمائش بھی ہوتی ہے، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ ازمائش بھی دیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے راستے پہ رہتا ہے یا میرا انکار کر دیتا ہے. اور کچھ ہوتا ہے جو تو بہت تک غلط کرتے ہیں، اس کو بھی پتا ہوتا ہے میں نے غلط کیا اور مجھے اس کی سزا مل رہی ہے. جو انسان دوسرا کہے نہ کہے، خود کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا غلط کیا. عربی لفظ الذین، ایک لفظ کا ترجمہ الذین ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، تعلق توڑتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ، جیسے توڑنے کا اللہ نے حکم دیا، أَن يُوصَلَ، کہ اس سے جوڑ جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے.
अब है इसकी तफसीर। अहद शिकनी और इत्फाक निफाक। सही बुखारी हदीस नंबर 34 में मुनाफिक की निशानियों का जिक्र करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक का जिक्र किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हदीस नंबर 34, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, ये हदीस हैं जो उन्होंने फरमाया, जब वो वादा करे तो इसकी खिलाफ वर्जी करे। मुनाफिक की निशानी है, वो जब भी कोई वादा करता है तो वो वादा पूरा नहीं करता। अब आपसे वादा करता है, मिसाल के तौर पे यही वादा कि मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, या ये वादा करता है कि मैं फला अच्छा काम करूंगा, जैसे कि कोई चीज मस्जिद बनवा दूंगा, किसी की मस्जिद मदद करूंगा, कुछ भी वादा करता है, फिर उसकी खिलाफ वर्जी करता है, उसके उलट करता है। एक तो वो वादा पूरा नहीं करता, दूसरा अगर किसी के साथ कहेगा कि मैंने ये ताल्लुक कायम करना है, ये रिश्ता करना है या ये करना है, फिर उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, उसको तोड़ेगा। इस आयत में अल्लाह के अहद को फासिकों की पहली अलामत बताई गई। ये अल्लाह के अहद को जो तोड़ते हैं, ये फासिक मुनाफिक, उनकी पहली अलामत है कि जो वो वादा करते हैं उसको उलट करते हैं, वो वादा कभी भी पूरा नहीं करेंगे। जब भी आप कहोगे कहेगा हाँ हाँ मैं करूंगा, पर वो करेगा नहीं, वो ऐसे बोलता रहेगा। वो ऐसा मुनाफिक होता है कि बस अल्लाह माफ करे, बहुत मीठा होता है, उसकी कड़वाहट जुबान में बिल्कुल नहीं होती। मुनाफिक की ये भी निशानी है, वो बहुत मीठा होता है, बस ये जी जी जी, बस सब कुछ तू ये वो, लेकिन करेगा दिल में नफाक रखेगा, मुनाफकत रखेगा। उनके लिए ऐसे हसद, उनकी चीजें देख के जलेगा, आग भुन जाएगा। तो ये मुनाफिक होता है, ये फासिक होता है, ये उसकी पहली अलामत है। अल्लाह से किया गया असली अहद, वो अल्लाह से जो असली अहद पक्का वादा होता है, उसको तोड़ता है इंसान अपनी फितरत और रूह के जरिए। क्या था वो अपनी फितरत, जो उसकी फितरत होती है, अच्छाई नहीं करेगा तो बस तकफिरल्लाह, गुनाह करेगा, लोगों के रिश्ते, लोगों के ताला खत्म करवाएगा, लोगों के लिए बुग्ज रखेगा, उनको नुकसान देगा, माली किसी का कोई नुकसान, किसी का कोई, तो वो उसकी फितरत होती है। उसकी फितरत बहुत गलत रिश्तों में पड़ जाएगा, गलत ताल्लुक में पड़ जाएगा, किसी कोई रिश्ते की पहचान नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कि वो सिर्फ अपने रब की बंदगी करेगा। और जो अल्लाह ताला से सीधा वो करेगा, कन्वर्ट अल्लाह ताला से, असली जो अहद होता है उसका, उसको इंसान अपनी फितरतों से तोड़ता है। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होता है वो अपने रब की बंदगी करेगा, वो किसी का कोई नुकसान नहीं करेगा, पीठ पीछे ना जहरी, और वो छुप के ये नहीं लोगों को दिखाएगा मैं इबादत कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, दिखावे की देगें पकाएगा, दिखावे की खैरातें करेगा, सदके करेगा, मैं फिर वो शोर करेगा मैंने ये किया ये किया ये किया। नहीं, जो सच्चा मुसलमान होगा वो छुप के भी अल्लाह की इबादत करेगा, जहरी भी करेगा, वो छुप के भी गुनाह नहीं करेगा, जहरी भी गुनाह नहीं करेगा, वो किसी का छुप के भी नुकसान नहीं करेगा, जहरी भी नहीं करेगा। अगर गलती से कभी हो जाए तो फिर अल्लाह से भी तौबा करेगा, उन बंदों से तौबा माफी मांगेगा। और जो सच्चा मुसलमान होगा वो किसी का नुकसान नहीं करेगा। तो ये ना, वो जिससे वो वादा करेगा वो वादा भी पूरा करेगा, वो खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, जो जुबान से बोलेगा वही करेगा। सिले रहमी और कतई ताल्की की ममानियत। आयत का दूसरा हिस्सा, वयक्ताऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, इन लोगों के बारे में है जो रिश्तेदारियों और इंसानी ताल्लुकात को तोड़ते हैं। ये उनके बारे में जो रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं, जो किसी भी तो बस तक गलत फहमियां फैला के किसी के आपस में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवा के उनके ताल्लुकात खत्म करवा देते हैं, या खुद भी ऐसी कोई वजूहात की वजह से ताल्लुक खत्म कर देते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम रिश्तेदारी, यानी रहम रिश्तेदारी अल्लाह के अर्श को थाम कर कहती है, जिसने मुझे जोड़ा अल्लाह इसे जोड़ेगा। देखें, अगर कोई किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी का कोई ताल्लुक टूटा हुआ है,
किसी को कोई गलत फहमी है, कोई जैसे आपस में हो जाते हैं, अगर आप लोग उनको जोड़ देते हो, उनकी गलत फहमियां दूर कर देते हो, और खुद भी किसी वजह से किसी से कोई मसला है उसको खत्म करके और उसको समझते हो, तो अल्लाह ताला कहता है वो ऐसे होता है जैसे उन्होंने अल्लाह के अर्श को थाम लिया। इतना यानी इसका फायदा है कि आप वो गलत फहमियां और वो चीजें खत्म करके करते हो, तो ऐसे होता है जैसे आपने अल्लाह ताला के अर्श को थाम लिया। जिसने मुझे जोड़ा अल्लाह उससे जोड़ेगा, और फिर वो होता है कि जिसने उसको जोड़ा अल्लाह ताला उसको जोड़ता। अगर कोई किसी के टूटे हुए रिश्ते बचा लेता है, बजाय इसके उनकी गलत फहमियां पैदा करे, उनमें आग लगाए, उनमें नहीं, अगर उनको जोड़ता है आपस में, उनकी गलत फहमियां दूर करता है, अगर वो किसी मुश्किलात में उनकी मुश्किलात दूर करता है, माली हो या कोई भी हो, तो अल्लाह ताला फिर उनको जोड़ता है जो दूसरों को जोड़ता। और जिसने मुझे काटा इसे अल्लाह ने काटा, यही ताल्लुक और रिश्तेदारी करे कि जिसने उसको तोड़ा और काटा तो उसने समझे अल्लाह को काटा। अल्लाह ने इन चीजों का हुक्म दिया है कि ऐसे करो, लेकिन इनको जो तोड़ते हैं तो अल्लाह ताला फिर उनको काटता है, उनको ऐसे तोड़ता है। फसाद और हकीकी खसारा ये नहीं है कि सही बुखारी हदीस नंबर 6412 की रोशनी में हकीकी खसारा इंसान दुनिया का माल खो दे। हकीकी खसारा ने ये नहीं होता कि जैसे फलां का इतनी, ये तो इधर तो बस यही खसारा गिना जाता है, फलां का इतना पैसा डूब गया, फलां का इतना नुकसान हो गया, फलां का कारोबार हो गया। वो हकीकी खसारा इसको कहते हैं दुनिया के माल को खोना। इंसान का हकीकी खसारा वैसे ये नहीं है, लोग इसको कहते हैं कि वो दुनिया का माल खो दे तो उसका हकीकी खसारा होता है, बल्कि असल नुकसान ये है कि इंसान अपनी आखिरत बर्बाद कर दे। असल नुकसान इंसान का क्या होता है, दुनिया तो समझती है हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारा इतना पैसा डूब गया, हमारा फलां हो गया फलां, लेकिन असल नुकसान क्या होता है, इंसान अपनी आखिरत खराब कर दे, बुरे रास्तों पे चल के, हिदायत के रास्ते पे ना चले, गलत रास्तों पे चला जाए, नफाक पैदा हो जाए, मुनाफकत हो जाए, जो बोले वो ना करे, लोगों की रिश्तेदारियां खत्म करवाए, बहुत अपने रिश्ते खराब करे, अपने बिगाड़ फसाद, और जो असल जो नुकसान है उसका वो आखिरत को खराब करना है, इस दुनिया को नहीं। माली नुकसान नहीं, इतना डूब गया, इतना डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। जो लोग जमीन में फसाद फैलाते हैं और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते हैं, जो जमीन में फसाद फैलाते हैं, तो अल्लाह ताला ने फसाद फैलाने से मना किया है, लेकिन वो फसाद फैलाए तो समझिए अल्लाह ताला के, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए, जो उसके अहकामात हैं उनकी नाफरमानी करते हैं, उनको खत्म करते हैं, अल्लाह का कहना नहीं मानता। और जो बंदा अल्लाह का कहना नहीं मानता तो अस्तगफिरुल्लाह, फिर बाकी कौन है वो जिसका कहना मानेगा। आज एक बच्चा माँ का कहना ना माने, बाप का, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसने मेरा कहना नहीं माना, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो, इसका फलां कर दो। पर अल्लाह ताला का पूरी दुनिया के लोग कहना नहीं मानते। अल्लाह ताला ना तो उनका रिज्क बंद करता है, ना उनकी कोई चीज खत्म करता, अल्लाह ताला देता रहता है, देता रहता है। बस अल्लाह ताला ने यही कहा है कि जो इस दुनिया में चाहता है वो मेरा कहना नहीं मानता, फिर मैं उसको इस दुनिया में वो जो कुछ चाहता है उसको दे देता हूँ, फिर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं आता। जैसे आप अपनी औलाद को किसी बात से मना करते हैं, वो नहीं मानते, अब बार बार मना करते हो वो नहीं मानते, तो आप कहते हो चलो जाओ करो जो है, खुद ही जलील। तो यही होता है, अल्लाह ताला भी यही कहता है जाओ मजे करो, पता तो तुमको आखिरत में चलेगा, जो करना है जाके करो। यही होता है, फिर वो इस दुनिया में सब कुछ करते रहते हो, खुद ही जलील होते, वही क्यामत के दिन सबसे ज्यादा खसारे में होंगे। तो यही लोग क्यामत के दिन भी सबसे ज्यादा खसारे में होंगे, जो अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करते, नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उन पे भी नहीं चलते, ना नेकी के रास्ते पे चलते हैं, ना नमाज कायम करते हैं, ना दीन पे चलते हैं। तो असल खसारा इन्हीं का होता है। क्यामत के दिन वही लोग खसारे में होंगे और उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा और उनकी आखिरत भी खराब होगी। ये दुनिया तो खराब हो गई, उन्होंने जितनी अय्याशी की फिर भी खराब हो गई। अब वह इंग्लिश में